we are dealing with the chapter number 4 from your module, that is public policies. Yeah, the policies which help in the business growth. In that we learn what do you mean by policy. Policy is a framework, right? Policy is a framework, is a rules, guidelines. It is a course of action, right? Decided by the organization or right individual. Public policies are the government policies. Public policies are the government policies, right? Taken with right some objective with some purpose, and they fall within the ambit of the law. Okay. Majority of the government policies related to the finance, fiscal, etc. can be seen in their annual budget. Okay. Next. Then again, yeah, we understood David Easton's model, that is black box model or feedback model, in which he says, right, whenever government implements some policy, they assume that all the right demands of society has not considered while framing the policy. Some of the demands, some of the concerns, some of the issues faced by the society may not get right considered while framing the policy, and therefore they ask for the feedbacks after implementing the policy. Actually policy implement करने के पहले भी policy is open for the public discussion, right? वो जो draft होता है, they make it available for the public discussion and they seek feedback from the public. Even after implementing the policy, they seek the feedback from the public, from the concerned persons, and they make the changes in the policies, and they are called as policy reforms. Then that is black box model or feedback model. Then the features of the policy, it is always a goal oriented. It is a collective action of all the government machinery, right? You have to consider many factors, your traditions, your customs, your culture, right? Religion, caste, right? Everything while framing the policies. Government drives, government pushes the implementation of the policy. It is government driven. It may take in the multiple forms, like it can be law, order, ordinance, right? It can be in request. Someone married, so that it can take multiple forms. Generally in India, the public policies are in the written form, right? They can be in oral form or written form, but written form generally follow किया जाता है. Then, if government is making a policy, it shows that they are positive towards concerns of the society. If they don't make any policy, or they make a policy which does not support the public concern, it shows their negative attitude towards the public concerns. It is a continuous process involving 5 phases. First, identification of the problem. First is identification of the problem. Second is policy formulation. Then adoption of the policy. Then implementing, and then evaluation. Identify the problem. Find the solution, that is policy form करो, उसको अडेप्ट करो, उसको लॉ बनाओ, उसका पार्लियामेंट में लेके जाओ, वो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो फॉलो करो, पॉलिसी अडॉप्शन, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. मे बी उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड टू ओपन ए सेपरेट association organization, policy implementation, and then policy evaluation, right? For the policy reforms, to make the policy reforms, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रहेगी, राइट? फिर हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज. पब्लिक पॉलिसीज आर बेसिकली ऑफ द 4 टाइप्स. रेगुलेटरी, all those policies which regulate a particular sector economy are called as regulatory policies, like SEBI, CCI, TRAI, Insurance Security Development Authority. Yes sir, they fall under regulators, regulatory policies.
Facilitative policies, government facilitate businesses, right? Startup India, right? Then Make in India, these programs, or you can say Manrega. So these policies helps businesses, yeah, announcing package for micro, small and medium enterprises during this pandemic, making them available loan at a concessional rate, giving them subsidy. So these policies are facilitative policies. Restrictive policies are the policies by which government restricts particular activity or particular sector from carrying on a particular activity. Restrictive policy, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, राइट? एंड इवन आई हैव शेयर्ड न्यूज ऑन द अपने ग्रुप पे, राइट? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मेड like prohibited, restricted, right, private practice by the doctors working in the government hospital. या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करो या प्राइवेट प्रैक्टिस करो, दोनों जगह पे नहीं. Just to, right, just for a better service to the patients. So restrictive, anything like lockdown is a restrictive policy. The rules framed under lockdown are the restrictive policies. Distributive policies are the policies by which government distributes welfare, right, through which welfare is aspects are distributed between the society. Public distribution system example, ठीक है? So, right, regulatory policies, right, these policies regulate the activities of a particular sector of the economy, particular sector of the economy. Facilitative policies, right, those facilitate an activity, right? Make in India, Startup India. You can always take an example. Make in India, Startup India. Right? Then restrictive policies, right? Export of onions is banned in India, right? So ये जो ban on liquor sale, etc., right? Custom duty higher है so that people won't import the goods and services to protect the domestic industry. So that is a restrictive policies. And distributive policies, right? These policies are meant for specific segment of the society. These mainly include all public assistance and the welfare programs. Then public policy in India. Who, right, makes the public policies? It is a government. As India is a democracy having federal structure, right, of the government, it means laws are made at the central level for the pan India by the central government and at a state level for the respective state. ठीक है, ये समझना important है. Law making is a process by which legislative proposal brought before the law making body. Draft of the bill is brought before the law making body, that is parliament, and then it is translated into the law of land. Law is effective part of the government's policy. So at a central level, there is a Lok Sabha and Rajya Sabha. The bill need to be passed in both the houses, right? At a state level, there is a Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, right? Vidhan Sabha is in every state. Vidhan Parishad हो सकती है या नहीं हो सकती है, depends. So these are the two law making bodies in India. Law making process, bill passes through 3 stages. Policy passes through 3 stages. First stage is called as the pre-legislative stage, right? Second is the legislative stage, and third is the post-legislative stage. That is, first stage में जो pre-legislative phase है, उसमें we have to identify the requirement of new law or amendment in the existing law, right? There should be need, then only you should frame the policy. So identification of the problem, जो हमने देखा था continuous process है policy. Identification of the right problem, drafting the proposed law, उसको draft करना, then make it open for the public for their inputs, seeking the inputs and comments from the different ministries and the public,
revision of the draft considering those inputs, and getting the same vetted by law of ministry. So we have to go to the law of ministry for like their approval कि हमने ये process follow की है, and then there will be cabinet meeting, and उस cabinet meeting में the bill, the proposed bill is like accepted and it is now to be brought into the parliament. So this is the stage 1. Stage 2 में होता क्या है? The concerned minister presents the bill, tables the bill in parliament in one of the houses. Initially कोई भी एक हाउस में. मनी बिल लोकसभा में आएगा सबसे पहले. Other bills, ordinary bill, right, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ऐसे 4 टाइप्स के बिल हो सकते हैं. जैसे उस दिन मैंने बोला था मनी बिल में, मैंने बोला था 110 आर्टिकल 110 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट, उसका जो आर्टिकल 110 है उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर्स है दे फॉल अंडर फाइनेंस बिल. ठीक है. सो वो खाली लोकसभा में पहले आना चाहिए. बाकी कोई भी बिल आप कहां पे भी प्रेजेंट कर सकते हो. तो आप यू हैव टू प्रेजेंट द बिल इन द पार्लियामेंट इन वन ऑफ द हाउसेस. सपोज लोकसभा में आ गया, देन देयर विल, राइट, उसके पहले यू हैव टू गिव ए नोटिस, लाइक एजेंडा होता है हर मीटिंग का कि हम किस लिए मिलने वाले हैं. सिमिलरली दैट मिनिस्टर विल, राइट, गिव द नोटिस to all the members about his intention to move the bill, right. Then there will be debate, there will be discussion, right, and then if required the bill will be sent to the standing committee, select standing committee for their like scrutiny. So वो लोग उस पे स्टडी करेंगे and they will give their report, and accordingly the जो बिल है उसमें चेंजेस किए जाएंगे, एंड अगेन वो बिल फिर से लाइक पार्लियामेंट में रखा जाएगा फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, राइट. देयर विल बी सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, लाइक दैट कंसेप्ट, एंड देन देयर विल बी वोटिंग एंड द बिल इज पास्ड. देन इट इज सेंट टू द अदर हाउस, वहां पे भी सेम प्रोसेस होगी, राइट. एंड द बिल वंस पास इन द बोथ हाउसेस विल बी सेंट, राइट, to the Ministry of Law and Justice. वहां पे वो भेजा जाएगा. So this stage is called as legislative stage, right. Then post legislative stage में क्या होगा? Once bill is passed in both the houses will be sent to legislative department of Ministry of Law and Justice for their scrutiny. Legislative department में जाएगा. So they will check the drafting and everything, spell errors, etc. Proofreading हो जाएगी. Once they approve it, it will be sent for the signature of the president. President may ask or he may send bill back to the parliament, right. If he has given some recommendations, those will be considered. Bill will be again sent to the, will pass through the same process, and thereafter president cannot reject the bill, he has to accept the bill. ठीक है. After the president signs the bill, it becomes the act. ठीक है. So this is a process जो यहाँ पे हमने समझ के ली थी. कैबिनेट अप्रूवल सबसे पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, फर्स्ट रीडिंग, देन सिलेक्ट कमिटी या स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जाएगा, सेकंड रीडिंग हो जाएगी, थर्ड रीडिंग हो जाएगी, बिल इन द अदर हाउस, राइट. वहां पे पास होने के बाद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल चाहिए एंड फिर लॉ बन जाएगा. ठीक है. सो ये यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज: liberalization, privatization and globalization. I know your background, you have learned it in your 11th and 12th. Just I will quickly go through it. ठीक है. जो मुझे important points लगेंगे slides में से I will explain them. Post independence public policy in India. After independence, obviously it was a big challenge for the India. Just like independence मिला, partition हुआ था, and there were many challenges lying ahead of India, like poverty, unemployment, right. Maximum population was dependent on the agriculture, and even agriculture output was very less. समझ में आ रहा है. So development करनी थी. So those were the challenges in front of the government, and to tackle those challenges government decided some policies, right. हमें वो समझने. So post independence public policies in India. Immediately after the independence in 1947, the Indian economy was characterized by a major portion of the population being below poverty line. Major portion was below the poverty line.
So poverty was a problem, major problem. Even it is there today. ऐसा नहीं कि वो चला गया है, right? Nearly 2/3 of the workforce was employed in the agriculture, but with the low agriculture output. Majority of the population is still based on the agriculture. Low level of industrialization. Yeah, industrialization has increased in India if you compare it with 1947, definitely. Then setback to available industries due to partition, particularly cotton industries. Then again, threats to national integrity from both external sources as well as internal, like regionalist tendencies. Regional थे ना, वो कोई किंग्स थे जो who are not ready to merge into India. हैदराबाद एक था उसमें से, लेकिन बहुत लोग थे, राइट, जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे. धीरे धीरे उनको इंडिया में मर्ज किया गया, बट दैट वाज अ चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस. एक तो चैलेंज ऑफ द पाकिस्तान, साइड में चाइना, राइट, एंड इवन विद इन इंडिया देयर वर लाइक सेपरेट रीजन्स, तो जिनको लाइक जम्मू एंड कश्मीर था एग्जांपल, जो बाद में इंडिया में मर्ज हो गया. फिर अभी आर्टिकल 370 आपने एबोलिश किया, राइट, इंडिया ने. सो ऐसे बहुत सारे थे जो देयर वर चैलेंजेस. सो राइट, देयर वर मोर चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. इन सिंपल वर्ड्स, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम, high poverty and unemployment, slow economic progress, etc. So these were the challenges India was facing at, right, on the eve of independence. Now हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो चाहिए. So there were two options. या तो कैपिटलिस्टिक मॉडल फॉलो करो या सोशलिस्टिक, दैट इज कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो करो. But India decided to go for the mixed economy policy. That is, we will be taking like good points from both, right, capitalistic as well as communist. So India followed mixed economy policy since its independence. Okay? What is the goal of selecting mixed economy policy? Socio-economic development and national integrity through 5 years plan. And so India was preparing 5 years like plan, like planning commission was set up, Central Association Planning Commission, who used to set plans, right, for India. मतलब गवर्नमेंट के लिए वो प्लान्स डिसाइड करते थे, 5 years plans. So उस प्लान के हिसाब से, right, गवर्नमेंट will take the action. So 5 yearly plans. Recently मोदी गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड द 5 year plan concept. वो बंद हो चुकी है, राइट, बट उसके पहले, मोदी गवर्नमेंट के पहले इंडिया में 5 years plan हुआ करते थे. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया था, मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया था, तो क्यों जरूरत पड़ी? मिक्स इकोनॉमी में क्या होता था कि गवर्नमेंट विल आल्सो टेक पार्ट इन द लाइक इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स, एंड प्राइवेट इज आल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी. सो इसमें गवर्नमेंट भी काम करेगी, प्राइवेट भी काम करेगा, राइट. It is a model in which government understands or recognizes the private ownership. Mixed economy में government recognizes the private ownership. They don't, right, neglect them. But ऐसे क्या हुआ 1947 से 1990 के बीच में, so that, right, 1991-1992 में we have to come with a new policy, the industrial reforms or LPG. So they have given you some examples, right? Some triggers, कोई ऐसे चीजें हुए जो हमें रिफॉर्म्स करने के लिए मजबूर किए, राइट. दे मेड अस थिंक कि हम करेक्ट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं. ऑब्वियसली दिस थिंग्स वर डन विद सम इंटेंशन कि टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक सप्लायर्स. हमने बहुत इंडिया को क्लोज इकोनॉमी बोला था, बट ज्यादा प्रोटेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम आने लगा. गवर्नमेंट, in order to give like services to the public, they enter into businesses. There were many businesses which are owned and controlled by the, right, government, public sector undertakings, but they were not working efficiently, so they were making losses. Output भी increase नहीं हो रहा था, so government का जो target था वो meet नहीं हो रहा था.
and we had borrowed a lot of money from the international institutions like World Bank, Asian Development Bank, International Monetary Fund, etc. तो वो भी लोन बर्डन हम पे इंक्रीज हो रहा था एंड इंडिया वाज ऑन अ वर्ज ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड देयर केम राइट Manmohan Singh and he proposed a new policy and that policy is showing the fruits today जो भी आज चल रहा है right because of the efforts by him in 1991 and 1992. So internal factors and external factors which triggered the requirement of the economic reforms. So first, high rate of direct and indirect taxation. If you, I don't know, आप लोगों को पता नहीं 93% टैक्स था इंडिया में पहले. 93% tax means if you earn 100 rupees, you have to pay 93 rupees to the government. You are left with only 7 rupees. इतना maximum tax था. Maximum tax की बात कर रहा हूँ. सबके लिए नहीं था, but maximum tax in India was 93%. Indirect taxes were very heavy. So direct and indirect taxes were very heavy. Today, maximum rate is almost 33% in India. Maximum rate income tax is 33%, including cess and everything. So high rate of direct, मतलब 93 से 33% tax कम हुआ है. Try to understand. After 1991, so high rate of direct and indirect taxation. Inefficiency of the public undertakings, public sector undertakings. They were into continuous losses, low per employee output. Efficiency of the employees were the lowest. Strong trade unions crippling the growth of the private sectors. अगर गवर्नमेंट डिसाइड भी करती है कि इस कंपनी को हम प्राइवेट कर देते हैं तो ये ट्रेड यूनियंस उसको अपोज करते थे बिकॉज अगर आप प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो देयर आर चांसेस ऑफ लाइक डिसलोकेशन मतलब यू हैव टू शिफ्ट द लोकेशन तो एम्प्लॉइज वर अफ्रेड कि उनका जॉब चला जाएगा या उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा एंड देयरफॉर थ्रू देयर यूनियंस दे वर पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट सो दैट वाज लाइक ये जो स्ट्रॉन्ग यूनियंस हो रहे थे ट्रेड यूनियंस हो रहे थे लेबर यूनियंस हो रहे थे दे वर कमिंग इन बिटवीन द ग्रोथ restrictions in the trade leading to lower quality of Indian products both locally and export market. There were trade restrictions. आप इतना ही आउटपुट कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं. There were quota policy. आप इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं. Right? If you want to have more factories, you need to take a license from the government, and government used to refuse. Right? वो licenses नहीं देते थे. License रास्ता था. So even if someone has a potential, right, he couldn't produce more or he couldn't install new factories because of the regulations of the government. गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि राइट जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं उन पे लिमिटेशन आ रहा है सो देयर वर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड देयरफॉर द क्वालिटी एंड द आउटपुट बोथ वर राइट लेस देन द एक्सपेक्टेड नीड फॉर strengthening defense and infrastructure. Huge fiscal deficits in the national budget. Fiscal deficit means receipts, government receipts minus government expenditure. Generally, India में government expenditure is always more than government's receipt. Budget expenditure is always more than budget receipts. Right? ये आपने 12th में budgetary लास्ट आप public finance में सीखा होगा. Right? लिख लेना यहाँ पे fiscal deficit means right budget expenditure is more than budget receipts means in order to spend government needs to borrow now government needs to borrow so huge fiscal deficit the gap between receipts and payments were increasing in the national budgets बिकॉज जो जिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लोन ले लेके आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो दे वर नॉट गिविंग द रिटर्न्स दे वर इनटू लॉसेस यस नॉट ऐसे नहीं कि सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर इनटू लॉसेस देयर वर गुड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक ओएनजीसी एग्जांपल राइट दे वर इन लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये प्रॉफिट मेकिंग थे बट दे वर वेरी लेस majority of the public sector undertakings like BSNL, MTNL, railways, they were into losses. ठीक है. Then
huge inflation, low reserves of the foreign currency, adverse balance of payment position. Adverse balance of payment position means imports are more than exports. Imports are more than exports means जो एक्सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा, इंपोर्ट की वजह से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगा. सो फॉरेन करेंसी आउटफ्लोज वर मोर देन फॉरेन करेंसी इनफ्लोज. सो पहले ही वी हैव लेस रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड उसमें एडवर्स बैलेंस ऑफ पोजीशन बीओपी की वजह से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, those reserves were depleting at a higher rate. So these were some of the reasons, right? ये जो क्लोज इकोनॉमी रखना, राइट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट एवरीथिंग, गवर्नमेंट विल टेक द पार्ट इनटू द बिजनेसेस, इसकी वजह से, राइट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड, राइट, पुट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कोटास, लाइसेंसेस, राइट, पब्लिक सेक्टर्स, private sector were not given entry in some of the sectors like insurance, banking, auto sector, manufacturing sector. गवर्नमेंट ही सब करती थी. तो ये सब चीजों की वजह से, राइट, there were inefficiency in the public sector undertakings. There was no competition. There should be competition, then only there will be growth. So competition ही नहीं थी. So that is the reason कि overall GDP was decreasing, inflation was mounting, बिकॉज डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. लाइक लोन्स, लाइक जो हमने लोन लेके रखे हैं, राइट, दे वर इंक्रीजिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिकॉज ऑफ दैट हायर एक्सपोर्ट, हायर इंपोर्ट्स देन द एक्सपोर्ट्स, राइट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज हो रहे एंड मोर ओवर देयर वाज अ फिस्कल डेफिसिट दैट वाज इंक्रीजिंग. इवन टुडे दिस अ फिस्कल डेफिसिट. ऐसे नहीं कि आज फिस्कल डेफिसिट नहीं है, बट at least today we can manage the fiscal deficit properly. At that point of time, right, it was a big challenge for India and the country was on the verge of being declared as a insolvent country, was right on the verge of being declared insolvent. These were internal, India के internal हो रहा था, right, because of its own policies, right. ऐसे नहीं कि वो policy गलत थे, try to understand, those policies were really good, intention was very good, बट उसका जो रिजल्ट है ना, दैट वाज नॉट शोइंग द पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव रिजल्ट. पॉलिसीज इंटेंडेड वर वेरी गुड, मतलब जो भी पॉलिसीज की हम हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, पहले हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और फिर हम कम्पीट करेंगे विद द अदर्स. ये एक मोटो था गवर्नमेंट का एंड दैट वाज रियली करेक्ट मोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटिव बहुत अच्छा था. बट द प्रॉब्लम वाज, लाइक, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी, राइट, बन रही थी. सो ऐसे नहीं कि पॉलिसीज रॉन्ग थे, ये मत बोलना कि पॉलिसी रॉन्ग थे. पॉलिसीज वर करेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम जो सिचुएशन थी उसको पकड़ के पॉलिसीज वर करेक्ट, बट उसका जो रिजल्ट दिख रहा था ना, दैट वाज नॉट करेक्ट. इवन करप्शन वाज हाई, इवन करप्शन टुडे इज आल्सो हाई. ऐसे नहीं कि करप्शन नहीं है, डोंट से कि करप्शन नहीं है, दैट इज नॉट द फैक्ट. आज कोई भी काम करना है गवर्नमेंट ऑफिस में, यू हैव टू पे द मनी, दैट इज अ फैक्ट, कोई कितना भी बोले. आई हैव सीन इट, राइट, मैंने देखा है, बहुत क्लोजली देखा है. एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस, वी डील विद ऑल दोस थिंग्स. सो करप्शन आज भी उतना ही है, ऐसे नहीं कि करप्शन डिक्रीज हुआ है, बट राइट, ये सब चीजों की वजह से वो पॉलिसीज जिनका पर्पस बहुत अच्छा था बट उनका रिजल्ट निगेटिव आ रहा था. सो एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो बट रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, तो यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी. आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर गिविंग एफर्ट्स बट उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, मींस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सो यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी. सिमिलरली इंडिया नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी इन 1991. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ द गवर्नेंस. जो रशिया था बेसिकली, जो हमारा क्लोज फ्रेंड था, राइट, दैट वाज लाइक कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया. And during that period of time, because of intervention of the US, right, Soviet Union, right, was got collapsed and almost उससे 18 to 19 अलग-अलग countries बने. So जो रशिया का जो पावर था एंड जो हमें हमेशा बैकिंग करता था, वो खुद, राइट, प्रॉब्लम में था. Then huge debt obligation due to borrowings from the World Bank, Asian Development Banks and IMF. So
we had a loan. ऐसा नहीं कि आज लोन नहीं है, आज भी लोन है, बट आज रीपेमेंट कैपेसिटी तो अब में, तब लोन थे बट रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी. So because of all these negative atmosphere, there's a need to change the strategy. कि हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड द सर्विसेज एट ए लोअर कॉस्ट टू द पब्लिक. तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो इफिशियंसी, देयर इज नो इंक्रीज इन द जीडीपी. तो गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू टेक द ओनरशिप, they will lead the country, and thereafter come Ambani and everything. Try to understand, and they change the scenario, they change the face of the country. So that action, right, economic reforms like opening up the economy in 1992, finally the government took revolutionary steps to open up the economy. एक revolution आ गई 1992 में, new industrial policy 1991 was implemented, right? This was preceded by new industrial policy 1991. It opened up the foreign capital inflow. उसमें हमने क्या किया कि we opened our economy, like foreign companies can invest into India, foreign companies can invest into India. Considering that, SEBI form किया गया in 1992. ध्यान देना, बिकॉज फॉरेन कैपिटल दे विल इन्वेस्ट इनटू इंडिया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए. नेक्स्ट ईयर में 1992 में सेबी आ गया. उसके बाद लाइक फेमा को चेंज किया, फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया, बिकॉज फेरा वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो फेरा को निकाल के फेमा लाया गया. 2002 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया. ऑल दोस एक्शंस वर सपोर्टिव ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. Right, it opened up the foreign capital inflow. The removal of the restrictions on the investments in the projects helped many businesses to expand. So जहाँ पे trade restrictions थे, quotas थे, license राज वगैरह था, वो निकाल दिया गया. You can invest as much as you want, you can expand as much as you want. Private sector was given free hand. This change in the policy allowed increased access to foreign technology and funding. On the other hand, we need to open up our economy, right? हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. जो इंपोर्ट पे टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटी, हमें ड्रास्टिकली कम करने को बोला गया, राइट, बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट, WTO. उन लोगों ने हमें वो कम करने के लिए बोला. एंड देयरफॉर लाइक द गेट्स ऑफ द इंडिया, या जो हम बाउंड्रीज हमने सील करके रखी थी, इकोनॉमिक बाउंड्रीज, राइट, वो ओपन की गई एंड उसके फायदे इंडिया में होने लगे. सो दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस. A massive change in the economic policy was laid down in 1992. Private sector was given priority. That everybody knows कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम नहीं काम करेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम रेगुलेशन का काम करेंगे, हम फैसिलिटेटर का काम करेंगे. Private sector will take the initiative and private sector will run the industry or economy. Many of the loss-making public sector undertakings were decided to be closed or divested. That is, पहले हम उनको corporate, उनको companies करेंगे and उनके शेयर सेल करेंगे to the private. So private ownership कर देंगे उसकी. जैसे वो private ownership होगी तो private is working for the profit. They are looking for the efficiency. So वो अपने आप उनकी efficiency increase होगी. Loss making units will become profit making unit. And investment सेल करने से, ownership सेल करने से, stake share करने से government will gain some inflow. Government का पैसा मिलेगा and it will help government to meet the fiscal deficit, to repay the loans. ठीक है? So many of the loss making units were decided to be closed or divested. पहले हमने divest या disinvest करना decide किया. अगर कोई purchase करता है private sector तो हम उनको sell करेंगे. अगर there is no buyer, then we will close down. There is no point in investing in a loss making unit. Right? Value their shares and sell a large portion of those shares to the public. तो गवर्नमेंट से उसको पैसा मिलेगा. Number of private sector banks were given licenses to run the banking operations. LPG route, like ये जो reforms है, new industrial policy
or economic reforms of 1991 is called as LPG policy, that is liberalization, privatization and globalization. ध्यान देना क्या लिखा है, LPG policy. What is the liberalization? Like liberalizing the trade restrictions, removing all the trade restrictions put by the government. Liberal कर दिया, free कर दिया, right? आपको जो करना है आप वो कर सकते हो. So the gradual, ये definition important है. What is the liberalization? The gradual decrease in the government's command and control over economic policies. जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था 1990 के पहले on all the sectors, on all the economic activities, गवर्नमेंट ने वो लाइक धीरे धीरे क्या कर दिया, वो कंट्रोल निकाल लिया. सो लिबरल कर दिया, राइट? एग्जाम्पल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर. ऑलमोस्ट जो मैंने बोला 93% मैक्सिमम टैक्स होता था इंडिया में, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 33%. देयर आर पीपल हु फॉल इन द 33% स्लैब्स, राइट? सो 33 प्लस उसमें सरचार्ज वगैरह रहता है, इट मेक्स 33% ओवरऑल. सो टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई कर दिया गया. रिमूविंग द कोटाज, जो कोटास था प्रोडक्शन के लिए, इसके आगे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो निकाल दिया गया. इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए गए. एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन इन्वेस्ट इनटू एनी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में, राइट? गवर्नमेंट अलाउड टू इन्वेस्ट एक्सेप्ट सम बेसिक लाइक रेलवेज, डिफेंस, ऑटोमिक सेक्टर. ये 2-3 सेक्टर छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स वर मेड ओपन टू द पब्लिक, राइट? दैट इज लिबरलाइजेशन, राइट? लाइसेंस राज खत्म किया सिंपल वर्ड में, दैट इज लिबरलाइजेशन. लिबरल कर दिया, फ्री कर दिया इकोनॉमी को. सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, जो हमें थोड़ा डीप में समझना है. प्राइवेटाइजेशन, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू द प्राइवेट हैंड्स. जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओपन करके रखे हैं, उनमें इन्वेस्ट करके रखा है, ओनरशिप बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, लाइक ONGC, लाइक SBI, लाइक Air India, example, like BSNL, MTNL, like there are many companies, the owners, ONGC, right? HPCL, Bharat Petroleum, all these are the government owned companies. And government decided to sell the companies, right? Or to convert them into private companies, or private companies nahi, actually to like give the ownership to the private people. So government will sell the stake and the public will purchase it. Anyone who is interested, any company, Reliance is interested, they can come and they can bid for that, and the ownership will be transferred to them. So government will gain the money, right? So privatization, that is disinvestment or, right, divestment, जो भी आप बोलो, divestment और disinvestment actually means the same. के through privatization किया गया. The transfer of government ownership. Privatization मतलब क्या? जो गवर्नमेंट ओन करती है उसको पब्लिक, राइट, प्राइवेट ओनरशिप कर देने का, लोगों के पास देने का, राइट? ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स. सेल ऑफ साइजेबल पोर्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शेयर्स विद गवर्नमेंट रिटेनिंग ए मेजॉरिटी होल्डिंग. या तो क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट खुद के पास 51% शेयर रखेंगे, रिमेनिंग 49% दे विल शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. This can be one option. इसको मेजॉरिटी, राइट, उसको बोला जाता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट विल सेल माइनॉरिटी शेयर. 49% इज अ माइनॉरिटी, 51% इज अ मेजॉरिटी. गवर्नमेंट खुद के पास मेजॉरिटी रखेगा एंड 49% किसको देगा, प्राइवेट को देगा. लाइक ONGC में गवर्नमेंट ऐसे ही कर रही है. मेजॉरिटी शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी इज टू द प्राइवेट. सो दैट कैन बी वन ऑप्शन. Sale of sizable portion of the PSU shares with government retaining the majority holding, that is one option. Or ownership, all the shares are transferred from the government to a single largest bidder. या government पूरे के पूरे shares, पूरे के पूरे ownership किसको दे देगी, right, private sector को दे देगी. So converting public sector undertakings to the private sector undertakings is privatization. Transferring the government ownership to the private is a privatization. What is globalization? Globalization means the whole economy or whole globe is a like village, or it is a one market, opening up the economy, freeing up the economy. So that is globalization. Import and exports के जो restrictions है वो निकाल देना,
right? Anyone can import as much as they want, you can export as much as you want, right? So that is a globalization. Taking away restrictions in the export and import of the goods. Taking away restrictions in export and import of the goods and services, lifting the trade barriers and integrating country's economy with the world's economy is a process of globalization. ऐसे नहीं कि कुछ भी restrictions नहीं है. Yes, like recently government has put restriction on the export of the onion. There is a restriction, but try to understand majority of restrict. पहले तो बहुत restriction थे. Majority of the restrictions have been removed. Simple words में. So L liberalization, P privatization, G globalization. ठीक है? Then शॉर्टकट में धीरे एक स्लाइड में खत्म कर देंगे. Liberalization. What is a liberalization? The process of liberalization was a major policy shift in India's economic journey. Liberalization covers easing or simplifying the business regulations, fiscal policies. Fiscal policy मतलब taxation policies, industrial practices and protocols. So government made doing business easy. जो गवर्नमेंट हर चीज में इंटरवेंशन, आपको कोई बिजनेस करना है, लाइसेंस चाहिए, कोटा डिसाइड किया जाएगा, आपको रेगुलेट किया जाएगा, राइट? तो वो सब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस निकाल दिए, दैट इज लिबरल कर दिया, लिबरलाइजेशन. इम्पैक्ट क्या होगा उसका ध्यान देना. लिबरलाइजेशन मेड द रूल्स, राइट? लिबरलाइजेशन मेड द रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंपलर, राइट? इट became easier for the Indian corporate houses to do the business abroad and vice versa. मतलब नया मार्केट खुला होगा इंडियन कंपनीज के लिए. फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉज like that was a FERA initially were simplified. The more stringent FERA, Foreign Exchange Regulation Act, was replaced with more liberal FEMA, Foreign Exchange Management Act in 1999. As a result of liberalization, more foreign funds started to flow in the form of FDI or FII. FDI or FII. FERA to FEMA. Then FIIs, that is foreign institutional investors, were permitted to invest into the equity shares quoted in the Indian capital market. FDI मतलब क्या, ये हम देखने वाले, कल देखने वाले. FDI मतलब कंपनी के असेट्स में इन्वेस्ट करना, मतलब यहाँ पे आके कंपनी ओपन करना, यहाँ पे आप यू विल इन्वेस्ट इन द प्लांट एंड मशीनरी, यू विल इन्वेस्ट इनटू द लैंड, उसको बोला जाता है एफडीआई. मतलब एग्जांपल, आप यहाँ पे आके प्लांट सेटअप करते हो, फॉरेन कंपनी कम्स एंड सेटअप प्लांट इन पुणे, इट इज एफडीआई बिकॉज दे आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो एक्चुअल कंपनी में आके रियल असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है एफडीआई. एंड एफआई मतलब क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है कि चलो इंडियन मार्केट इज इंक्रीजिंग, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, आके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. दैट इज नॉट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, यहाँ पे आके फैसिलिटी ओपन करना, उसको बोला जाता है एफडीआई. एफडीआई इज मोर परमानेंट इन द नेचर and therefore there is more significance to the FDI because that creates employment, that creates like more GDP, output increase होता है. फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है उसकी वजह से, बिकॉज दे विल कम विद द फॉरेन टेक्नोलॉजी, उसको बोला जाता है एफडीआई. एंड एफआई मतलब क्या, वो जैसे हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे दोस पीपल विल इन्वेस्ट इन आवर शेयर मार्केट. बट अगर शेयर मार्केट डिक्रीज होगा, दे कैन रिमूव द मनी, दे कैन इजीली रिमूव द मनी. So that is less permanent. What is more important for the country? FDI is more important for the country because उससे benefit ज़्यादा होता है. So foreign institutional investors were permitted to invest into the equity shares quoted on the Indian capital market. Privatization helped the government. Privatization helped the government to generate pool of the resources, and stock market witnessed a number of PSUs, right, getting listed. Public sector undertakings जिनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, they started listing their shares and raising more and more capital from the right investors. So उसकी वजह से उनके पास ज्यादा कैपिटल भी आ गया, गवर्नमेंट को पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों से ही पैसे ले रहे, कंपनी में इन्वेस्ट हो रहे हैं, कंपनी एक्सपांड हो रही है,
तो गवर्नमेंट को अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद द मनी एंड वो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट को पैसा भी मिल रहा है बाय सेलिंग द स्टेक. देन दिस इज मोर ऑफ द सेम एंड एक्सेट्रा. देन आगे related legislations, right, were passed, related laws were passed to ensure fair play in doing the business. अब कंपटीशन इंक्रीज होने वाली है, प्राइवेट सेक्टर को फुल हैंड दिया है आपने, जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए, उसके लिए राइट related laws were passed to ensure fair play in doing the businesses like Competition Act 2002, IT Act, Information Technology Act, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, आईपी एक्ट. ये क्यों है कि जो कंपटीशन है राइट वो फेयर कंपटीशन हो इसके लिए. सो आईपी एक्ट की वजह से क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, जो इनोवेट करेगा, जो इन्वेंशंस करेगा, ही विल गेट ए पेटेंट एंड ही कैन इनकैश दैट. वो उसको राइट उस पेटेंट को सेल कर सकता है, या उससे वो जो आउटपुट बनाएगा ही कैन मेक मनी इन द मार्केट. And that patent, that right is protected for some period of time. So it encourage innovations. Try to understand. Copyrights वगैरह ये सब चीजें, right? Trade name वगैरह, उसकी वजह से लोगों को encouragement मिला कि हमारा right हमारा रहेगा, no one can copy from us. So that give encouragement. Try to understand. So, right? अगर कोई ये करता है, माल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो आप उसको कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर लेके आ सकते हो, राइट? Competition Commission of India will regulate like unfair practices, trade practices. तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया इंडियन मार्केट में. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन इज मोर अबाउट राइट, जैसे आपने मुट्ठी में पकड़ के रखा है उसको छोड़ दिया, आपको जो करना है वो करो, राइट? दैट इज अ लिबरलाइजेशन. लाइक आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिबरल कर दिए, राइट? जो एकदम स्ट्रिंजेंट रूल थे उसको लिबरल किया गया, सो दैट टू इंकरेज प्राइवेट सेक्टर टू टेक द एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन, ओनरशिप एक्सेट्रा. ठीक है, दैट इज अ लिबरलाइजेशन. उसमें मेजर स्टेप्स क्या है? फेरा टू फेमा, एमआरटीपी टू सीसीआई, मोनोपोलीज, राइट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, उससे हमने रिप्लेस कर दिया सीसीआई से. ठीक है. देन सेकंड इज द प्राइवेटाइजेशन. What do you mean by privatization? Privatization means, right, transferring the ownership from the public, that is government, in the private hands or private houses. So privatization background. In 1990s, there was growing domestic consensus that state-owned PSUs were not generating adequate returns and were suffering from the low efficiency. Even today, the public sector undertakings are not actually working up to the mark, like BSNL, SBI. You can take an example, right? So they are not working up to the mark. Even railways into losses. So they are still into losses. And led government, right? And the government expected that privatization of these public sector undertakings would lead to the better outcomes. The government desire and necessity was to extract and release the massive investments made in the state-owned public sector undertakings. Like suppose there is an organization, ध्यान देना, and there is an investor. Investor invest money, उसको investment बोला जाता है. A person invest into the organization is called as investment, and person removes investment, withdraws his investment, sells his investment, is called as disinvestment. ये लिख लेना. What is investment? Investing into the business is an investment, and वो investment को निकाल लेना is a disinvestment or divestment. ठीक है. इसका रीजन क्या हो सकता है? Organization is contributing to losses, so इसलिए आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आप ओनरशिप निकाल रहे हो, राइट? यू आर रेडी टू सेल द, या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, मे बी वो भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यू आर रिमूविंग राइट द इन्वेस्टमेंट. कोई वो बिजनेस गवर्नमेंट ने बैन किया तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू क्लोज द बिजनेस, इसलिए आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल रहे हो या सेल कर रहे हो. समझ में आ रहा है? सो इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट.
देखते हैं. So because of their inefficiency, right, because of their consistent losses, government decided to disinvest, or disinvest leads to privatization. गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्ट किया, मतलब गवर्नमेंट ने उनके शेयर्स किसको सेल किए, प्राइवेट को शेयर किए, राइट. सो इट उसको बोला था प्राइवेटाइजेशन. सेलिंग इन्वेस्टमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज अ प्राइवेटाइजेशन. ऑब्जेक्टिव्स. The two main objectives of the privatization in India are to raise the finance revenues to ease the fiscal crunch. जो fiscal deficit है, we are incurring more expenditure, but public revenue is very less than the public expenditure, or government revenue is very less as compared to government expenditure. And a developing countries requires more and more expenditure on development. So expenditure तो आप cut down नहीं कर सकते. What you can do, you can raise the revenue, but there is a limitation on the tax revenue, which is a major source of income for the government. Tax revenue, direct tax, indirect tax, but वो भी limited था. Try to understand. तो एक कोई तो ऑप्शन चाहिए जहां से हमें राइट वो रेवेन्यू जनरेट हो जाए. तो दैट ऑप्शन वाज अ प्राइवेटाइजेशन, मींस डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स. बिडिंग की गई, जो इंटरेस्टेड है, हु इज रेडी टू पे हायर, उसको हमने वो राइट्स सेल किए एंड गवर्नमेंट रिसीव्ड द मनी. सो टू ईज द फिस्कल क्रंच, जो फाइनेंशियल क्रंच है राइट बजट में, टू रिमूव दैट, टू रिड्यूस दैट, राइट, दिस इन्वेस्टमेंट इज और प्राइवेटाइजेशन इज ऑप्टेड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड जो गैप है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू में उसको कम करने के लिए. देन एंड टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ द डाइवेस्टेड एंटरप्राइज. उससे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लाइक क्या बोलते हैं उसको राइट, वो जो इनइफिशिएंट थी, लॉस मेकिंग थी, जैसे प्राइवेट ओनरशिप में आ जाएगी, प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाएगा, दे विल फाइंड इफिशिएंसी इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. दे विल आस्क देयर एम्प्लॉइज, अगर काम करो तो करो, नहीं तो निकल जाओ, सिंपल. प्रॉफिट रहेगा तो चलेगा, अदरवाइज नहीं. सो मराठी त्याला काट टाकणं म्हणतात, काट टाकणं मीन्स दे स्पीड अप देयर एक्टिविटीज, राइट. जो इनइफिशिएंसी थी वो निकालनी पड़ी. सिंपल है, प्राइवेट ओनरशिप आ गई तो you know the way they provide the services. Compare SBI versus ICICI, compare SBI with the HDFC, you will understand the like the impact of the privatization. ये day to day life में मिलता है. HDFC will come to your doorstep and will collect the documents from you and will provide you the service, and that is not offered by the SBI because they are not bothered at all. Try to understand. There is no incentive for the public sector undertakings. This is very simple example. अगर राइट ये अगर आपको सिंपल एग्जांपल समझ में आता है तो यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, एंड दोस हु हैव द कैपेबिलिटी, वो कैपेबिलिटी को लाइक एप्रिशिएट किया जाता है, उसको लाइक उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है. प्रमोशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एज, कि आप ज्यादा सीनियर हो इसलिए आपका प्रमोशन होगा. Juniors who are more efficient are promoted in the organization. Public sector में होता क्या है, who are promoted, जो ज्यादा साल से वहां पे काम कर रहा है, उसकी efficiency पे प्रमोशन नहीं होता है पब्लिक सेक्टर में. मतलब आपने 10 साल काम किया तो आपका प्रमोशन ड्यू है क्योंकि आप 10 साल वहां पे हो. प्रमोशन आपके नंबर ऑफ टेन्योर पे है. प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन वैसे नहीं होता है. You are promoted on your efficiency. I still remember when I joined Accenture, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में भी समझाया होगा, राइट. आई गॉट प्रमोटेड इन द 6 months. 6 months में मुझे प्रमोशन मिला था. मैं पूरे जितने भी हम नए स्टार्टअप अकाउंट ज्वाइन हुए थे, आई वाज द फर्स्ट वन टू गॉट प्रमोटेड बिकॉज ऑफ दैट माय वन, मैंने एक ढूंढा था वो वैल्यू, लाइक रेवेन्यू लीकेज मैंने ढूंढा था वो, इट वाज ए ह्यूज अमाउंट. सो माय मैनेजर लाइक आस्क लाइक ही लाइसेंस विद द मैनेजमेंट एंड ही गॉट मी प्रमोटेड विद इन 6 months. अगर मैं पब्लिक सेक्टर में रहूंगा तो डिपेंड्स, मैं जितने साल रहूंगा राइट वैसे वैसे मेरा प्रमोशन होगा. बहुत सिंपल है. जो काम करेगा उसको राइट अवार्ड दिया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा. इन द प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर में वैसे नहीं है. पब्लिक सेक्टर में करप्शन भी ज्यादा होता है, विच इज नॉट जनरली इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. अगर आपको जॉब चाहिए पब्लिक सेक्टर में, आपको पैसे देने पड़ेंगे, एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो पैसे नहीं, वहां पे कैलिबर पे वो लेते हैं.
Try to understand. So that is a fact. If I tell you one thing, you will be surprised. Agar there are disadvantage of public sectors, there are disadvantage of public sectors, and right, वो disadvantage को remove करने के लिए privatization was a better option. आगे objectives, background, then privatization strategy, ध्यान देना. So what was the strategy? So privatization refers to managerial approach for changing the ownership structure of one or more government owned institutions. Privatization refers, okay, अब इसे एक और बात बोलता हूं. अगर आप बोलोगे सर आप ऐसे करते हो, एक लड़की आई थी मेरे पास एडमिशन के लिए लास्ट ईयर. हर फादर वाज इन पुलिस. उन्होंने बोला कि इसे 1 रुपए फी नहीं लेनी है, आपको इसको सब सिखाना है. मतलब मैंने बोला मैं बन गार्डन पुलिस स्टेशन में काम करता वगैरह. मैंने बोला मैं ऐसे नहीं करूंगा, आई विल टेक फीस, मैं जितनी फीस ले लूंगा. नहीं बोले आई एम ए पुलिस. मैंने बोला सर आप पुलिस हो तो आपने तो ज्यादा देना चाहिए, आपको तो ज्यादा मिलता है. तो बोला ऐसे कैसे. तो मैंने उस लड़की को खाली में उस लड़की को बोला, बोले जब भी तू मेरे सामने आएगी ना तो मुझे हमेशा लगेगा तू फोकट की सीख रही है. तुम लोगों ने ये भी बोला होता ना कि फीस कंसेशन दे दो, अगर सच्ची में आपकी फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम होता तो मैं दे देता. लेकिन यू आर जॉब, आप कमा रहे हो, एंड उसकी वजह से आपको ये आप पोजीशन का डिसएडवांटेज ले रहे हो. तो मैंने नहीं दिया. उस लड़की ने बोला पापा नहीं एडमिशन चाहिए इधर, वो चली गई. आई डोंट नो किधर गई फिर. दूसरा एक एग्जांपल देता हूं. आई वाज वर्किंग इन एचडीएफसी, आई वाज अ मैनेजर. तो हमें पहले रूल्स दिए गए थे किन लोगों को लोन देना है, किन लोगों को नहीं देना है. उसमें से पुलिस एंड नेताज वर एक्सक्लूडेड. जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है एंड पुलिस में है उनको स्पेसिफिकली लोन नहीं मिलेगा, उसके कैटेगरी में नेगेटिव लिस्ट में थे लोग. मैं सबको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हमें फर्स्ट डे पे बोला अगर ये प्रोफाइल रही इस बैकग्राउंड की तो नहीं देना है. उनके रिकवरी में प्रॉब्लम आता है. दे टेक लाइक डिसएडवांटेज, लाइक दे यूज देयर पोजीशन फॉर रॉन्ग थिंग्स. रिकवरी में प्रॉब्लम आता है. वो उनकी पॉलिसी थी. इट वाज नॉट, मुझे लगा खाली एचडीएफसी की, नहीं, ये ऑलमोस्ट सब बैंक की थी. ऑलमोस्ट सब बैंक की थी. उनको गवर्नमेंट बैंक्स लोन देती है, प्राइवेट सेक्टर लोन नहीं देती है. चाहे तो जाके चेक करना, पूछना, डालो कि एज ए पुलिस ऑफिसर या ये नॉट नेसेसरी एवरी यहाँ पे प्रॉब्लम है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने देखा है खुद होके. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट हमें इंस्ट्रक्शंस थे. एंड वैसे एक बार हुआ भी, एक किसी पुलिस ऑफिसर की फाइल आ गई, लेडी थी, एंड वो फाइल प्रोसेस वगैरह हो गई और सीनियर ने रिजेक्ट कर दी बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल. उसने बोला इट इज अ पॉलिसी कि हम लोन नहीं देंगे. एंड शी ब्रॉन्ग कॉन्स्टेबल्स एंड शी ब्रॉट कॉन्स्टेबल्स एंड सब वो कॉन्स्टेबल्स आ गए, सब ये लोग झगड़े करने लगे वगैरह. लाइक पूरा पावर का मिसयूज वगैरह, पूरा धिंगाना ऑफिस में. तो ऐसे होता भी है. सो मे बी देयर एक्सपीरियंस, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, राइट, इसके अगेंस्ट मैं नहीं हूं, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर पॉलिसीज. सो जो वहां पे हुआ मैंने वो बोला आपको, ठीक है. वही एसबीआई में जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो सबसे पहले वेलकम किया जाता है बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर में नहीं है सपोज. So privatization refers to managerial approach. Privatization refers to managerial approach of changing the ownership structure of one or more government owned institutions. Government ownership structure public से private के sector में, government से private के sector में. As a strategy, privatization helps as under higher flexibility, scope of innovation, cost savings, yes, accountability and quality in the production and the service system. ये benefits हैं. Enhancement of or enhancing the efficiency, quality, competitiveness, right? Rapid restructuring and reforms of the public sector undertaking. So there were good benefits of the privatization. But do you think कि public will easily accept the privatization? No. However, privatization has an adverse impact on the employee morale and generates fears of the dislocation or termination.
privatization can be successful if diligent scrutiny by the decision makers is attached to the policy concern. So जिनको निकाला जाएगा उनको कहाँ पे रिलोकेट किया जाएगा, उनको कौन सी नई जॉब दी जाएगी, अगर ये सब पॉलिसीज में होना चाहिए. So it was widely criticized. भले ही 1991 1992 में प्राइवेटाइजेशन आ गया, बट डायरेक्टली जब वाजपेयी जी को पीएम बने तब प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली इफेक्टिव हुआ. ये भी समझ लेना, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी थी बट नो कंपनी वाज प्राइवेटाइज्ड. राइट, जो भी कांग्रेस के उसके बाद गवर्नमेंट थे किसी ने भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया. फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो प्राइवेटाइजेशन किया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7-8 इयर्स के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ. देन these are important, this is VIMP. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन पता है, ग्लोबलाइजेशन पता है, लिबरलाइजेशन पता है. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ये किसको भी नहीं पता, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ठीक से ले लूंगा. ध्यान देना, हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन. पहले होता है डेलीगेशन. मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी, विल डेलीगेट. डेलीगेट मींस ट्रांसफर. डेलीगेट मींस ट्रांसफर, राइट. They will delegate their functions, outsource. Delegate means outsource, simple words में चाहिए तो. वो क्या करेंगे गवर्नमेंट, they are the owner of the company, they are the real owners, yes, but they will outsource the activity to the private sector. आप देखो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, ओनरशिप उनके पास है, they are the real owners, but private sector will run. आप प्रोडक्ट डिलीवरी करो, आप प्रोडक्ट सेल करो, आप मार्केटिंग करो, ओनर हम रहेंगे. देयर इज अ डेलीगेशन. ठीक है, सो डेलीगेशन में क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुल्ली और पार्शियली द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड, डिलीवर्ड, सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड नॉट बाय द गवर्नमेंट but by the private sector. So government is the owner and private sector is the performing the duty, like PPP projects, public private partnership projects, construction of the roads, construction of the dams, construction of the airports. Agar aap, if you know, right, the many of the airports are run by the private entities. Airports are owned by the government but they are run by the private entities. पूरी वहां पे सिक्योरिटी, पूरी फैसिलिटी, चेकिंग, स्टॉल्स वगैरह ये सब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है. एवरीथिंग. ऑब्वियसली दे पे सम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम दैट, बट द फैसिलिटीज आर वर्ल्ड क्लास. सो बिकॉज इट इज मैनेज्ड बाय द प्राइवेट. दिल्ली एयरपोर्ट इज एन एग्जांपल, बेंगलोर एयरपोर्ट इज एन एग्जांपल, कि जहां पे इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, हाउएवर एविएशन मिनिस्ट्री इज द ओनरशिप रहती है, बट right, the functioning is given to the private sector. And अभी ऐसे भी चल रहा है कि रेलवेज ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, but those will be run, railway stations will be maintained by private sector. So delegate कर रहे हो आप, आपका फंक्शन आउटसोर्स कर रहे हो to the private, completely or partly. Right? There is an active involvement by the government. There is an active involvement by the government. गवर्नमेंट ओनर रहती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सच डेलीगेशन may happen through contracts, franchises, grants, etc. So government will give franchises, right? जैसे आधार कार्ड के लिए there are many franchises. रेगुलर गवर्नमेंट करती है, but the whole activity is like गवर्नमेंट के भी सेंटर्स हैं, प्राइवेट भी लोग काम करते हैं. ठीक है, so through that government delegates its work. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. Then, right, that is delegation. Delegation is simple. Then I will go to the displacement. Then जो easy है वो लेता हूं. Delegation में क्या करना है, owner is a government, right? Owner is government. However, government will delegate, government will outsource its activities to the private sector. Is a delegation. ठीक है. Second, displacement. What do you mean by displacement? BSNL was displaced. BSNL, MTNL were displaced by Airtel, Jio, right, others. पहले गवर्नमेंट ने काम करना बंद नहीं किया. Try to understand. Government is still into the telecom sector, but government opened telecom sector for the private players. क्या हुआ, ध्यान देना.
government is into telecom sector, in a particular sector, government allowed private sector to come and do business, compete with the government. Public sector undertaking के साथ आप compete करो and displace us, हमें निकाल दो मार्केट से, हम नहीं जाएंगे मार्केट में, हमें आप निकाल दो. समझ में आ रहा है? सो कंपटीशन आ गई. सो डिस्प्लेसमेंट, एयरटेल जियो डिस्प्लेस बीएसएनएल एमटीएनएल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्राइवेटाइजेशन. देखो गवर्नमेंट ने बीएसएनएल की ओनरशिप दी क्या? नहीं. एमटीएनएल की ओनरशिप दी क्या? नहीं. राइट. गवर्नमेंट के बसेस है महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र डेपो के बसेस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. शिवनेरी भी है, शिवशाही भी है, राइट, लालपरी भी है, ये गवर्नमेंट के बसेस है. एंड एट द सेम टाइम देयर आर प्राइवेट, आप नीता ट्रैवल्स ले लो, आप जो भी ट्रैवल्स है वो ट्रैवल्स ले लो, दे आर वर्किंग, दे आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्प्लेस ईच अदर. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप सेल नहीं करती, गवर्नमेंट अलाउ करती कि आप भी हमारे साथ कम्पीट करो. इसमें गवर्नमेंट कम्पीट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज जॉइनिंग हैंड विद देम. आप हम दोनों मिलके काम करेंगे. डेलीगेशन में क्या हो रहा है? हम ओनरशिप हमारे पास रहेंगे, हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे, बट हम हमारा जो काम कर रहे हैं ना, हम आपको आउटसोर्स करेंगे. सो दोनों मिलके काम करेंगे. इसमें दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे, कंपटीशन में काम करेंगे. तुम तुम्हारी ओनरशिप रखो, हम हमारी ओनरशिप रखेंगे एंड वी विल कॉम्पीट विद ईच अदर. हमें डिस्प्लेस करो. समझ में आ रहा है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है देखो. द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स and gradually displaces government entities. Private enterprises will expand. Like example, banking में देखो, SBI, right? It is almost cornered by, right, ICICI, right? Example, your HDFC, example, Kotak, Axis. SBI largest bank India में है. But अगर if you ask someone to open the account, generally वो बोलेगा मुझे ICICI, Axis, HDFC, कोटक में ओपन करवा के दो, बिकॉज दे आर गिविंग बेटर सर्विसेज. सो दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर. द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस, राइट, गवर्नमेंट एंटिटी. डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन इफ इट अनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज गवर्नमेंट मोनोपोली. जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसमें गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट कर दिया, जिसको आना है आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड they will challenge the government entities on their caliber. Example, government monopoly through BSNL and MTNL has been displaced by private sector parties. National Organic Chemical Limited has been displaced by the growth and the expansion of Reliance Industries Limited. Reliance is into oil exploration as well. Try to understand. ठीक है, chemicals and etc. So that is displacement. मैंने पहले दो चीजें कवर की, राइट, जिसमें गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइजेशन है, बट गवर्नमेंट उसका डिसइन्वेस्ट नहीं कर रही है. प्राइवेटाइजेशन मींस चेंजिंग द हैंड्स, ओनरशिप पैटर्न चेंज करना. व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन? मैनेजरियल अप्रोच चेंज करना बाय चेंजिंग द ओनरशिप. द सेक्टर इज ओन्ड बाय द प्राइवेट ओनली. सेक्टर वाज ऑलरेडी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली. नाउ इट इज ओपन टू द प्राइवेट एज वेल. ठीक है. सो देयर आर 4 ways. First way of the privatization, forms of the privatization is delegation. Second is a displacement, निकलो गवर्नमेंट को बाहर वहां से. ये दोनों सेम ही है, both are same. Divestment and disinvestment मतलब government will sell its stake. Government will sell its stake in the public sector undertakings to the private sector. जैसे ओएनजीसी में गवर्नमेंट धीरे धीरे उसका स्टेक सेल कर रही है. गवर्नमेंट इज रेडी टू सेल एयर इंडिया, बट देयर इज नो बिडर, कोई मिल नहीं रहा है. मोदी गवर्नमेंट ने तो पहले से ट्राई कर रहे हो एयर इंडिया को, जो लॉस मेकिंग यूनिट है उसको सेल करने का, नहीं हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइक गवर्नमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह, इनमें जो गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स है उनमें वो क्या कर रहे हैं? स्टेक सेल कर रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा. दैट इज डिसइन्वेस्ट और डाइवेस्टमेंट. तो देखो क्या लिखा है. डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट गिव्स पार्शियल ओनरशिप, लाइक गवर्नमेंट गिव्स इनिशियली पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो इसमें क्या था? डेलीगेशन में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
प्राइवेट के पास थी, यहाँ पे दोनों दे रहे हो, राइट। गिव्स पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड धीरे धीरे पूरी ओनरशिप उनको देने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे चुके हो, ओनरशिप भी उनको ट्रांसफर कर देने की, एंड सेल द मेजॉरिटी स्टेक, राइट, टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन द कोर्स ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे ओनरशिप इज विद गवर्नमेंट, ownership is government, responsibility is private with the private, is with private. Then divestment, इसमें ओनरशिप एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी शेयर, दोनों शेयर करेंगे, राइट। गवर्नमेंट के पास थोड़ा रहेगा, उनके पास थोड़ा रहेगा, लाइक दैट। ओनरशिप प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी is transferred to private, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट देखा, राइट। गवर्नमेंट ने ना ही ओनरशिप दी है ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहे हैं एंड प्राइवेट भी उनका उनका फंक्शन कर रहे हैं एंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन? दिस इन्वॉल्व्स सेलिंग ए पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक in the public enterprises to the private parties. Divestment and displacement are literally same. खाली फर्क क्या होता है? डाइवेस्टमेंट में राइट, आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर आपका एक आर्म जो होता है, एक बिजनेस का एक सेगमेंट होता है, वो आप सेल करते हो। एंड डिसइन्वेस्टमेंट में आप पूरे कंपनी सेल, मतलब आप क्या कर देते हो कि फिर से कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है हमें, या गवर्नमेंट उससे जाएगी नहीं, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे लिए टू बी वेरी फ्रैंक दे डोंट मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर सेम। डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट फॉर अस मींस सेम। दिस इन्वॉल्व्स सेलिंग ए पोर्शन ऑफ द ओनरशिप in the public sector undertakings to the private sector. There are three types of disinvestment. Minority, मतलब गवर्नमेंट 49% शेयर्स सेल करेगी, गवर्नमेंट स्टिल रिमेन्स ओनर, सो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी शेयर्स सेल करने का, स्टेक माइनॉरिटी स्टेक सेल करने का, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब 51% स्टेक या मोर देन दैट ट्रांसफर करने का प्राइवेट को। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट मतलब 100% स्टेक प्राइवेट को सेल करने का, मतलब कंपनी को पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को सेल करने का। सो देखो क्या है, व्हाट इज द माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट? पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास रहेगा, माइनर शेयर प्राइवेट के पास रहेगा। मतलब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कैसे किया है? माइनर किया है, पूरा शेयर नहीं। मेजॉरिटी ओनरशिप इज स्टिल विद गवर्नमेंट, लाइक ओएनजीसी इज बीइंग डिसइन्वेस्टेड, राइट। वो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है, मेजॉरिटी स्टिल विद द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू सेल एयर इंडिया, वो कंप्लीट डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, पूरी की पूरी सेल करना चाहती है। गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू प्राइवेटाइज द रेलवेज, बट वो माइनॉरिटी रहेगा, नॉट मेजॉरिटी, ठीक है। सो देखो, पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट रिटेन्स मेजॉरिटी स्टेक, गवर्नमेंट के पास मिनिमम 51% रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इन द कंपनी, टिपिकली ए ग्रेटर देन 51%, thus ensuring managing control. Government still remains major owner. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, आप जो डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, वो माइनॉरिटी है, मतलब अप टू 14% आप सेल कर रहे हो, so that minimum 51% आपके पास रहे। Then, मतलब गवर्नमेंट is still major owner in the minority disinvestment. Majority disinvestment, post disinvestment, the government retains minority share in the company, मतलब गवर्नमेंट disinvest majority share. So गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम 14% शेयर रहेगा, प्राइवेट एंटिटीज के पास मिनिमम 51% शेयर्स रहेंगे या स्टेक रहेगा, दैट इज इट सेल्स ऑफ मेजॉरिटी स्टेक। एंड कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट मींस वी आर 100% कंट्रोल, राइट, वी आर 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनीज पास्ड टू द बायर, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये चार्ट एवरीवन, नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, लिख लेना, ठीक से लिख लेना, ठीक है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी, यू नो व्हाट डू यू मीन प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, ठीक है, ये चीज लिख लेना, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लिख लेना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट इज डेलीगेशन, सेकंड इज डेलीगेशन हुआ, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, निकाल देना गवर्नमेंट को, फिर आएगा डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली हमारे लिए दोनों सेम ही है, आंसर लिखते टाइम, ठीक है। दीज आर द फोर वेज। डेलीगेशन मीन्स राइट ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, right, to private sector, transferring responsibility, right, and not ownership, not ownership to private sector. That is the delegation. You delegate some task, you outsource some task. Example, outsourcing. ये पता है ना, बिल्ड क्या होता है वो, बिल्ट रन प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्ट, क्या बोलते हैं उसको, बिल्ट रन बाय, ऐसे कुछ तो रहता है। गवर्नमेंट बोलती तुम बिल्ड करो, तुम रन करो, और बाद में हम आपसे बाय करेंगे। लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट आस्क देम टू बिल्ड, गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट, वो बिल्ड करेंगे प्राइवेट सेक्टर, वो रन करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, मतलब दे विल रन इट फॉर 10, लाइक एक रोड बनाया है तो उस पर टोल नाका डाल देंगे, तो वहां पे 10 साल वो कमाएंगे जितना होता है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट को ओनरशिप देंगे, दे विल रिकवर देयर कॉस्ट। आप ही बनाओ, आप ही रन करो, और बाद में हमें सेल करो, हम बाय करेंगे आपसे, ठीक है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट पता है कि वो इफिशिएंट है, तो पूरा रोड वो बनाएंगे, हाईवे के हाईवे, कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, काम कर देंगे, तो दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, यस, तो उनको पैसे कहां से आएंगे। तो आप 10 साल पूरा वो आप मैनेज करो, 15 साल आप मैनेज करो, 20 साल आप मैनेज करो, मेंटेन द रोड, जो टोल कलेक्ट होता है वो आपकी इनकम रहेगी, इवन हम उस पर टैक्स भी नहीं लगाएंगे, टैक्स हॉलिडे रहेगा 5 इयर्स 10 इयर्स, कोई टैक्स मत दे दो, राइट। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, आपकी कॉस्ट, आपका प्रॉफिट रिकवर होने के बाद आप हमें दे दो, उसके बाद हम देखेंगे। सच प्रोजेक्ट्स, डेलीगेशन, देन आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, allowing private sector allowing private sector to enter, right, as a competitor, and displace PSU। लाइक बीएसएनएल वालों ने बोला होगा क्यों क्यों आप प्राइवेटाइज कर रहे हो इस सेक्टर को, हमारे पास ही मोनोपोली रहो। गवर्नमेंट ने बोला होगा आप भी परफॉर्म करो, वो भी परफॉर्म करेंगे, एंड जो जीतेगा वो जीतेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव देन परफॉर्म, अदरवाइज पेरिश, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज बीएसएनएल, एमटीएनएल, right, got displaced because of Airtel, Jio, etc. Disinvestment, right, and divestment. There is an investor who is a government, It has invested in public sector undertakings. It is investment, but that investment is not giving some returns, right? They are into losses. So government decides to disinvest.
मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी को बंद नहीं किया, बोले कंपनी चलेगी, वी आर रेडी टू सेल द कंपनी, कम एंड बिड, जो ज्यादा देगा उसको कंपनी मिलेगी, वी विल सेल आवर शेयर्स, हम हमारे शेयर सेल करेंगे, लाइक दैट। इसके 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लाइक माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। माइनॉरिटी में पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप कितनी रहेगी एंड प्राइवेट के पास कितनी ओनरशिप रहेगी, गवर्नमेंट ओनरशिप एंड प्राइवेट ओनरशिप। माइनॉरिटी में मिनिमम गवर्नमेंट के पास 51% ओनरशिप रहेगी, स्टेक रहेगा गवर्नमेंट का, एंड इनका मैक्सिमम 49% रहेगा। उस टाइप के डिसइन्वेस्टमेंट को जिसमें गवर्नमेंट रिटेन्स द कंट्रोल, गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर, राइट, गवर्नमेंट सेल्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स, सेल्स ऑफ डिसइन्वेस्ट, डाइवेस्ट, राइट, माइनॉरिटी स्टेक इज ए माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर वो मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम 49% रहेगा एंड प्राइवेट के पास मिनिमम 51% रहेगा। कंप्लीट इसमें गवर्नमेंट के पास 0 रहेगा, 100%, राइट, किसके पास रहेगा, प्राइवेट के पास रहेगा। ठीक है, ये लिख लेना एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको बाकी चीजें यू कैन राइट, आप पढ़ के खुद होके भी कर सकते हो, उसमें इतना ये नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दैट इज नॉट ए बिग डील, ये नया है सबके लिए, राइट, इसलिए मैं ये इस पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और इस पे ज्यादा फोकस किया गया है मॉड्यूल में भी। आगे नेक्स्ट, ठीक है, सो ध्यान देना। सो प्राइवेटाइजेशन, delegation, displacement, divestment and disinvestment, 4 forms of the privatization. Answer लिखते हैं 4 forms. Delegation means outsourcing, simple words में ownership गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट will outsource some of the activities to the private. दूसरा displacement, displacement मतलब गवर्नमेंट will allow private to compete with them and, right, private by their expansion, by their strategies will displace the government, PSUs. Divestment or disinvestment means selling the stake in the PSUs by the government to the private sector. Selling the stake, इसमें stake sale हो रहे, पहले दोनों में stake sale नहीं हो रहे, try to understand, stake sale नहीं हो रहे। The divestment and disinvestment shares, stake sale होता है, ownership ही sale हो जाती है, right? So that is divestment or disinvestment, right? There are 4 types. Minority disinvestment मतलब government will sell minority stake. Majority disinvestment means government will sell majority stake, and complete disinvestment means government will sell 100% stake. So जो एयर इंडिया है ना, वो complete disinvestment के लिए। So इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जब स्टेक सेल करेगी, गवर्नमेंट विल गेट मनी एंड वो पैसे गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट मीट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करने के लिए वो यूज करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट इंडिया में द प्रॉब्लम इज, गवर्नमेंट का पर्पस बहुत अच्छा है कि डिसइन्वेस्टमेंट, क्यों, कि जो लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स है उनको सेल करना है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, लास्ट पॉइंट है, राइट। गवर्नमेंट का पर्पस है कि जो लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट उनको इवैल्यूएट करेगी कि कौन से वायबल है और कौन से वायबल नहीं है, राइट, जो विच कैन बी कंटिन्यूड और विच कैन नॉट बी कंटिन्यूड। जो कंटिन्यू नहीं करेंगे उनको बंद कर देगी गवर्नमेंट, बिकॉज उनको पता है कोई परचेस भी नहीं करेगा। सो जो कंटिन्यू हो सकते हैं, गवर्नमेंट आस्क प्राइवेट सेक्टर टू कम एंड बिड, वी वांट टू डाइवेस्ट, वी वांट टू डिसइन्वेस्ट, बट पब्लिक सेक्टर भी होशियार है, व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन लॉस मेकिंग कंपनीज। सो लॉस मेकिंग कंपनीज लाइक एयर इंडिया, नो वन इज रेडी टू बाय। कब से, जब से मोदी जी आए तब से 2014 से
he wants to disinvest. Reliance is also not ready to purchase. Try to understand, because it is a loss making, huge borrowings. जब वो ओनरशिप लोगे तो लोन्स भी आपके सर पे आएंगे. इट्स huge losses, huge loans. No one is interested. Example दे रहा हूं मैं, Air India. On the contrary, these companies, private sectors like Reliance and etc. are more interested in coal. They are more interested in ONGC etc. because they are profit making. Government का purpose क्या है? To raise the money by selling the stake in the loss making unit. But no one is ready to buy the loss making units, and hence just for the purpose of raising the money, government is selling even profit making unit. Government should not sell the profit making units, but government still sells. That is done by the Congress government, right? That is also done. Congress government ने बहुत कम companies को disinvest किया है, right? बीजेपी गवर्नमेंट इज नोन फॉर दैट. करना है नहीं करना है उस पर हम बात नहीं करें, बट जो है मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ऑब्वियसली जो लॉस मेकिंग है उसको डाइवेस्ट करना चाहिए, ना कि अर्निंग जो प्रॉफिट मेकिंग है. लाइक ओएनजीसी इज रियली गुड कंपनी, इट इज असेट ऑफ द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इज सेलिंग इट बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मनी. सो मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो अंडा देने वाली मुर्गी, उसको सेल नहीं करना है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट. एंड आगे से हर गवर्नमेंट करेगी, ऐसे नहीं कि बीजेपी कर रही है. एवरीवन विल डू दैट बिकॉज़ नो वन इज देयर टू आस्क द क्वेश्चंस. रेलवेज को डाइवेस्ट कर रहे हो, आप बोलोगे सर रेलवे इज अ लॉस मेकिंग यूनिट, बट उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट उतनी हाई भी है ना, इसलिए वो लॉस मेकिंग है. अदरवाइज इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेलवेज में. अगर उसको ठीक से मैनेज किया गया है ना, तो इट विल आल्सो बिकम ए प्रॉफिट मेकिंग यूनिट. देयर इज नो प्रॉब्लम. आप बोलोगे सर लालू ने किया था, लालू ने प्रॉफिट मेकिंग नहीं किया था. आप बोलोगे सर कांग्रेस के टाइम हुआ था. नहीं, लालू ने डेप्रिसिएशन ही माइनस नहीं किया था, इसलिए प्रॉफिट दिख रहा था. ये बाद में पता चला. जो उसने बजट दिया ना, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ था, इसलिए राइट वो प्रॉफिट दिख रहा था. और बाद में 1-2 साल के बाद पता चला कि उन्होंने अमोर्टाइजेशन कॉस्ट नहीं ली थी. ये भी फैक्ट है जो कभी मीडिया बात नहीं करती, या मीडिया को समझता नहीं. दोनों में से एक चीज रहेगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the purpose क्या है? To sell the loss making units and to raise the finance. So that is the purpose. Actually होता क्या है? That is other thing. Next, आगे, and the last slide on the privatization impact. The efforts of the privatization was accepted by the society with a lot of resistance during the inception of the economic liberalization. There were no bidders for the loss-making public sector undertakings, while there are many takers for the surplus-making industries like oil drilling and refinery companies, like ONGC, like oil exploration में जो mineral extracting sectors like Steel Authority of India, National Mineral Development of Corporation. इनके इसमें there are many bidders because they are actually making the profits, and वो sector बहुत अच्छा है, right? So that is the thing. So आज हमने क्या क्या देखा? Just I will revise in 5 minutes. So because आज हमने वैसे बहुत सारी चीजें देखी है, right? हमने देखा, right, policies, post independence policies, right? We followed mixed economy model, right? However, those policies, even though intention was really good, but their results were very bad. Like it's same as like अपनी मम्मी अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट? इतना प्रोटेक्ट कर रही है कि वो उसको सेल्फ लाइक सफिशिएंट, लाइक वो खुद के पैरों पे खड़ा ही नहीं रह सकता. हर चीज अगर आप स्पून फीडिंग करोगे तो लाइक वो बच्चा पैर पे नहीं खड़ा रहेगा. वैसे हमारे इंडस्ट्री के साथ हुआ. गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन्स, लाइक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेट्रा, राइट? हम हमारे इंडिया में भी कंपटीशन को भी रेगुलेट कर रही है एकदम, राइट? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वगैरह. उसमें क्या होने लगा कि उसके रिजल्ट्स नेगेटिव मिलने लगे, एंड देयरफॉर देयर केम ए नीड इन 1991 1992 कि हमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. दैट इज टॉक्स अबाउट लाइक एलपीजी पॉलिसी, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है? सो लिबरलाइजेशन मींस लाइक इकोनॉमी को फ्री करना, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने डाले उस पे उनको निकाल लेने को बोला जाता है लिबरलाइजेशन. द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक पॉलिसीज. Then privatization means what? Right? Selling,
right, the stake in the private public sector undertakings, or allowing private to enter into public monopolies, allowing private to enter into the public monopolies. तो उसमें भी वो काम करेंगे, that is privatization, right? And the third, globalization, is integrating the country's economy with the world economy, is a globalization, import export etc. Then liberalization में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, फेरा टू फेमा, राइट, देन सेबी का एस्टेब्लिशमेंट, एंड देन एमआरटीपी टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. प्राइवेटाइजेशन बहुत डीप में था, राइट, हमने बैकग्राउंड समझा प्राइवेटाइजेशन का. These two objectives are also important for MCQ, right? What is the right? To raise the revenue finance, to ease the fiscal deficit, fiscal crunch, and to improve the profitability and the efficiency of the like divested enterprises. Then, right, there are many benefits of the privatization, but it is not that much easily accepted by the society. Then there are 4 ways of the privatization. In the 2 ways, you don't transfer the ownership, you are right. In the first stage, your first form, you are the owner, you transfer the responsibility, delegation. In the second one, you don't transfer the ownership, you are into business. Private sector is also allowed to enter into the monopolies. जो पहले monopolies थे उनमें भी उनको allow किया गया. And private sectors by expanding their activities will displace the public sector, that is displacement way of privatization. फिर दोनों disinvestment and divestment, मतलब government will sell its stake in the public sector undertakings. That can be of 3 ways. Minority disinvestment, they will sell minority stake keeping majority with them. दूसरा हो सकता है majority disinvestment, selling majority stake and retaining minority stake. And complete disinvestment means 100% stake private को sell करना. ठीक है, there is a privatization. I can give an example. एक अच्छा example है, right? Of my relative, close relative. He was a ZP teacher. He was a ZP teacher, and he got placed in Konkan area. उनकी बदली कोकन एरिया में हो गई. And there was a government resort. There was a government resort, try to understand, and government resort was closed. There were public like private resorts as well. Government का भी था, but कोई चला नहीं रहा था. एक government की every year एक advertise आती थी कि जिसको चलाने वो चला सकता है, government को जो भी रहेगा वो payment करना पड़ेगा. He was working there. तो उन्होंने देखा कि यार ये खाली है. Now he is a teacher over there. He decided to apply for that. उन्होंने अप्लाई किया and he took the possession. Owner is the government. वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना सपोज. तो उन्होंने राइट वहां पे वो कंट्रोल में लिया और उन गांव से कोई लोग लेके गए, उधर के लोग, और उनको मिला के सबने साथ में आके राइट उधर काम पे लगा दे लोग. फॉर he made a huge amount of the profit out of that. Huge amount of the profit. Later on he resigned. उन्होंने रिजाइन किया. गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेक्स्ट ईयर में रिजाइन कर दिया, एंड नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर द रिसोर्ट एवरी ईयर, राइट, वो उसके लिए अप्लाई करते. सो नाउ दिस इज काइंड ऑफ डेलीगेशन. ओनर इज अ गवर्नमेंट, वो रिसोर्ट गवर्नमेंट का, पहले कोई नहीं चलाता था बिकॉज हर एक के प्राइवेट अपने अपने हैं. तो उन्होंने वो डिसाइड किया, वो बाय लक उधर गए, उनकी पोस्टिंग हो गई वहां पे, एंड वहां पे उन्होंने वो देखा कि यार ये खाली है, कोई चलाता नहीं, एंड एवरी ईयर वो एडवर्टाइज आती थी बस कोई लेता नहीं था. ही अप्लाइड एंड नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर दैट रिसोर्ट. एवरी ईयर आती है, दे अप्लाई, वो पूरा ग्रुप है उनका. सो मैं एग्जांपल दे सकता, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. सो राइट, सो बहुत जगह पे आपको दिखने को मिलेगा, राइट, दिस थिंग्स. सो प्राइवेटाइजेशन. सो अब वो जो रिसोर्ट इतने दिनों से बंद था, राइट, अब वो चालू हो गया. बाकी यहाँ से रेट्स कम मिल रहे, जो विजिटर्स है, जो लाइक घूमने जाते हैं, उनके लिए बेनिफिट हो गया ना कि कम रेट में. गवर्नमेंट वैसे रेगुलेट करती कि इससे ज्यादा भी रेट नहीं रखती. गवर्नमेंट इज ओनर ना, तो उनको अप्लाई करते टाइम, बिड करते टाइम ये सब क्लॉजेस एग्री करके करना होता है. तो इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा हो गया, उनका भी फायदा हो गया,
एंड लोगों का भी फायदा हो गया। तो जो अननेसेसरी हायर प्राइसेस प्राइवेट सेक्टर चार्ज कर रहे हैं उसमें भी कंट्रोल रहता है, चेक रहता है उस एरिया में, ये कम रेट में देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं, ऐसे भी विजिटर्स रहेंगे ना। तो इसमें सबका फायदा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्राइवेटाइजेशन इज गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं कि इट इज बैड, राइट। सो एंड ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की वजह से वी आर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक एनी नेम, कोई भी बड़े नाम ले लो, यू विल फाइंड प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप इज ऑलमोस्ट विद द प्राइवेट सेक्टर। Yes, still there are some sectors which are not privatized, like defense, like your atomic energy sector, because they are of national security, they relate to the national security, उसको privatize नहीं कर सकते, उसमें compromise नहीं हो सकता। Railways is still government's monopoly, but government is using delegation approach to make it a private। government ownership नहीं सेल कर रही, government outsource करने वाले काम, लाइक लोग जो बोलते हैं ना मोदी गवर्नमेंट रेलवे सेल करी, दैट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट इज नॉट गोना सेल द रेलवेज, दे आर गोना डेलीगेट, वो ओनरशिप उनके पास रहने वाले, राइट। दे आर गोना सेल एयर इंडिया, ये बोलो, दे आर सेलिंग द शेयर्स स्टेक ऑफ द ओएनजीसी, ये बोलो, बट दे आर नॉट गोना सेल द ओनरशिप ऑफ द रेलवेज, दे आर गोना डेलीगेट द प्रोसेसेस। ये रेलवे स्टेशन आप मैनेज करो, रेलवे स्टेशन आप मैनेज करो, फिर वहां का पार्किंग आ गया, वहां पे स्टॉल्स आ गए, समझा, वहां पे पैसे, फिर ठीक से वो जो प्लेटफॉर्म टिकट भी कंसेप्ट होती है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह वो प्रॉपर मैनेज करेंगे, वहां पे क्राउड ठीक से मैनेज होगा, कुली वगैरह सबको ठीक से मैनेज करेंगे, इसमें सबका फायदा होगा। तो गवर्नमेंट इज वो टेंडर बेसिस पे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो मिसकंसेप्शन कि मोदी गवर्नमेंट इज गोना सेल द रेलवेज, नो नो नो, they are following delegation, right। रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट के नाम पे, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो चलाएंगे, दैट्स इट। इवन रेलवेज भी वो डेलीगेट करने वाले, एक प्रॉपर रूट, सपोज रिलायंस देखेगा, राइट, मतलब उसकी क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें वो देखेंगे। ओनर इज अ गवर्नमेंट, उससे इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ऐसे उनका मानना है, होगी भी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी, राइट। सो हाँ, रेट्स वगैरह भी इंक्रीज हो गए, that can be a problem, but right, वैसे भी रेट्स वैसे देखा जाए तो as compared to other transportation इसके बहुत कम है, right। so that can be subject for the debate, but मैं वो delegation है, not disinvestment, ये समझ लेना। so आज आपको एक समझ में आ गया कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ओनली, हमें प्राइवेटाइजेशन मतलब हमें लगता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप ही सेल कर रही है, नॉट नेसेसरी, इट कैन बी डेलीगेशन एज वेल, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट में गवर्नमेंट के पास ओनरशिप रहती है, बट गवर्नमेंट, राइट, उतनी अगर इफिशिएंटली काम नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को बाहर जाना पड़ेगा। लाइक एसबीआई स्टिल देयर, बिकॉज वहां पे उनके पास उतने अकाउंट्स है, पब्लिक सेक्टर के सब अकाउंट्स उनके पास रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सब उनके पास अकाउंट्स रहते हैं। आपको कोई भी चीज गवर्नमेंट के रिलेटेड करनी तो आप वहां पे एक अकाउंट हर कोई ओपन करके रखता है, मेरा भी एसबीआई में अकाउंट है विच आई नेवर ऑपरेट, खाली साल में 1-2 ट्रांजैक्शन करता हूँ, राइट, सो दैट वो ऑपरेशन में दिखे, बस नथिंग एल्स, जस्ट फॉर लाइक कभी पासपोर्ट वगैरह उन चीजों के लिए लगेगा तो गवर्नमेंट प्रूफ बोल के वो निकाल के रखा है। सो ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करते, बट इफिशियंसी इज लेस, सो दे आर लाइक, एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ इंडियन पोस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम्पीट विद ऑल दिस प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। जैसे उन्होंने स्पीड पोस्ट लाया एग्जांपल, द सर्विस आर रियली गुड, स्पीड पोस्ट के सर्विसेज सच्ची में अच्छे, ऐसे नहीं कि आप बोल सकते हो, आपके कितने सारे स्टूडेंट्स के घर पे स्पीड पोस्ट से बुक्स गए, राइट, हमने कितने सारे स्पीड पोस्ट से बुक्स भेजे इंडियन पोस्ट से। सो ऐसे नहीं है कि वो करते नहीं, उनको टाइम लगा ये समझने के लिए कि अगर वो करेंगे नहीं तो दे विल गेट डिस्प्लेस्ड। गवर्नमेंट बोल नहीं रही कि हम बंद करेंगे, बट अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके जॉब जाएंगे, लाइक दैट। एंड जब ये इनसिक्योरिटी रहती है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम्पल जब ये इनसिक्योरिटी रहती है ना, फिर टेंशन रहता है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल, कल परसों में एक एग्जाम्पल दूंगा सत्यम फ्रॉड के रिलेटेड, एंड आई विल टेल यू द रियल स्टोरी विच वाज, जो ऑडिटर थे, ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआई, जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था टू मैनेज दैट एवरीथिंग अफेयर्स, एंड ही वाज ए लाइक गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर फॉर 2 years। उन्होंने पुणे में, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, ही टोल्ड अ स्टोरी, वो मैं स्टोरी आपको बोलूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब लग जाती है किसी की, लगती है, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, एंड दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द सत्यम एम्प्लॉइज। तो वो मैं कल बोलूंगा, वो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। सो जैसे आपके एग्जाम नजदीक आने पे आपकी लगती है तो आप पढ़ाई करते हो, सिमिलर,
सो जब तक कंपटीशन नहीं रहेगी, जब तक इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे। और वही है राइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो द 4 ways and then 3 types of the disinvestment, minority, majority and complete. So कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल खाली हमें 2 ही चीजें डिस्कस करनी है, एफडीआई वर्सेस एफआईआई। ठीक है, ये कंसेप्ट हो जाएगा, फिर दिस चैप्टर विल गेट ओवर। ठीक है, सो एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग बिफोर आई एंड द सेशन? ओके गुड। सो आई डोंट नो अबाउट 130 लेक्चर, 5:45 को मेरा लेक्चर रहेगा। थैंक यू।